মঞ্চ ৪১ বছর পেরিয়ে ৪২-এ পা। মাঝখানে দুটি বছর আপনারা সকলেই জানেন সারা পৃথিবী স্তব্ধ হয়েছিল অতিমারী মহামারীর কারণে। ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, কৃষ্টি সবকিছুই মানব জীবনের মতো স্তব্ধ হয়েছিল। আজকের আমাদের যে অনুষ্ঠান, যে উৎসব, চতুরঙ্গ উৎসব, এই উৎসব হওয়ার কথা ছিল গত জানুয়ারি মাসে। সেই মতো আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, কিন্তু এই অতিমারীর কারণে আমাদের সেটা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানই শুরু হচ্ছে আজ ইউনিটি বালমঞ্চের চতুরঙ্গ উৎসব। আমি ডেকে নেব নাট্য সমালোচক, গবেষক অংশুমান ভৌমিক এবং নাট্যকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছোট নাটকের বরিষ্ঠ নাট্যকার, যার নাটক সারা পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে প্রতিযোগিতা মঞ্চ থেকে আমন্ত্রিত। শুধু ছোট নাটক নয়, কলকাতার মঞ্চগুলোতেও তার লেখা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। মৈনাক সেনগুপ্ত, আপনারা মঞ্চে আসুন। ইউনিটি বালমঞ্চের পক্ষ থেকে একটি দুজন গুণী মানুষ আজকের এই উৎসবের যারা শুভ সূচনা করবে, তাদেরকে ইউনিটি বালমঞ্চের তরফ থেকে আমরা বরণ করে নেব। মিষ্টি মেমেন্টো দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক, শিক্ষক সুবোধ পট্টনায়ক। নাট্য গবেষক, নাট্য সমালোচক অংশুমান ভৌমিককে নিত্যানন্দ পাল বরণ করে আমি বিশ্বাস, অঞ্জন নাথ। তো উৎসবের স্মারক প্রদান করলেন। এবারে সামান্য ফল কামনা করি। বাংলা থিয়েটারের জয় হোক, সবাই ভালো থাকুন, নমস্কার। বড় বাবা থাকে কলকাতায়, আমার যেহেতু প্রায় সবটাই কলকাতায়, আমি আজকে কলকাতার স্বর হয়ে একটি কথা সকলের সামনে স্বীকার করতে চাই। গত কয়েক বছরে ওই কোভিডের অন্তরে এই সময়টাকে বাদ দিলে এই নৈহাটির এই মঞ্চটি কলকাতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছে।
আমরা জানি যে উত্তর 24 পরগনা এবং হুগলি সে অর্থে কলকাতার থিয়েটারের সাপ্লায়ার, এই দুটি জেলা মূলত সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু এই জেলাগুলোকে কেন্দ্র করে, এই জেলা শহরগুলোকে কেন্দ্র করে বড় নাট্যকেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে পল্লবিত হয়েছে এমনটা নয়। কোন রবীন্দ্র ভবন সে অর্থে সেই উচ্চতায় উঠতে পারেনি। কিন্তু ঐক্যতান মঞ্চ রাজনৈতিক ছত্রছায়া নিয়ে এবং তা ব্যতি রেখে দর্শকদের আনুকূল্যে এবং দলগুলির সৌজন্যে একটি চমৎকার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছে। এবং কলকাতায় থেকে আমরা এখন বুঝতে পারি যে বাংলার মাঝখানে থাকবার একটা সুবিধা এবং ট্রেন লাইনের একেবারে সংলগ্ন হওয়ার আরেকটি বড় সুবিধা এই মঞ্চটি পাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে এই শহরে পুরনো নতুন মিলিয়ে অনেকগুলি সক্রিয় এবং সজাগ নাট্যদল রয়েছে এবং চেয়ারের রং সবুজ হোক বা লাল হোক, তারা গ্রুপ থিয়েটারের মূলগত যে বার্তা, সামাজিক অঙ্গীকারের যে বার্তা, সামাজিক দায়বদ্ধতার যে বার্তা এবং রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হওয়ার যে বার্তা, সেই বার্তাকে নিরন্তর ভাবে নাটমঞ্চে উপস্থাপন করে চলেছেন। আজকে দেবাশিস বাবুর যে প্রারম্ভিক স্বাগত ভাষণে যে দুজন সদ্য প্রয়াত নাট্যকার তাদেরকে স্মরণ করা হলো, শুভেন্দু মজুমদার এবং অলোক বিশ্বাস, তাদের সাম্প্রতিক কাজগুলির কথা যদি আপনারা স্মরণ করেন, যেমন থাপ্পড়, তা আমাদের গানে এমন থাপ্পড় লাগিয়েছিল যে তার দাগ এখনো আছে। কাজেই যে মাটি, যে শহর এই নাট্য সংস্কৃতির ধারক এবং লালনকারী, তাকে কলকাতার পক্ষ থেকে আমরা प्रणाम जाए। बंधु हैं, सबको शुभेच्छा। और यूनिटी बालंच जो दल है, जो 40 साल, ये हमसे भी सीनियर है, तो उनके जितने सारे कर्णधार हैं सबको प्रणाम। और आपने हमें बुलाए, हम आए। पहले से बोल रहे थे कि आप गेस्ट बन के आ जाइए, लेकिन मैंने ही उनको बोला कि मैं गेस्ट बनने लायक नहीं हूँ, हो सकता है तो नाटक के माध्यम से कुछ करने का अवसर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। Then they called me with all glad open hand कि please do come with a play, no problem। इसीलिए हम आभारी हैं। कोरोना से पहले हमारे नाट्य चेतना का जो नाट्यग्राम है भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर बाहर, जहाँ पे हम सब रह के ही नाटक का काम का चिंतन करते हैं, मई 1 तारीख शनि दिवस में हमारा लास्ट नाटक का परफॉर्मेंस हुआ था, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नाटक है। और 2019 का वो 1 तारीख के बाद सुपर साइक्लोन का एक आवाज आया। 2 तारीख में हम हमारे नाट्यग्राम को कैसे संभाल पाएंगे इसके लिए दम दिया, प्रस्तुति लिया। और 3 तारीख को हमारे नाट्यग्राम के दूर का कमरे से फोटो खींचते रहे, देखते रहे कि हमारा नाट्यग्राम कैसे ध्वंस हो रहा है। 3 घंटे में हमारा बहुत सारे कुछ इधर उधर हो गया। इसको संभालने के लिए हमको 16 लाख रुपया चाहिए। और आज तक नाट्यग्राम में सरकार का पैसा नहीं, कोई राजनीतिक ग्रुप का नहीं, कोई धार्मिक अनुष्ठान का नहीं, कोई कॉर्पोरेट का नहीं, सब हमारे खून पसीने से है। कहीं पे भी एक फलक, ऐसा कोई प्लेट नहीं लगा है कि किसी ने इनागुरेट किया, किसी ने डोनेट किया, किसी ने क्या किया हमारे। तो ऐसी अवस्था में हमने एक अपील किया तो हमको 7.5 लाख रुपया 101 रुपया से लेके 20,000 तक किसी ने दिया है, मनी ट्रांसफर करके। उनका नाम हमको बता दिया, लेकिन उसी में धीरे धीरे उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हुए धैर्य से हम
जब तैयार हो रहे थे मार्च 27 विश्व नाट्य दिवस में एक नाटक को लेके घूमेंगे, तब 23 मार्च में ही 2020 को एक ये आ गया कि कोरोना में लॉकडाउन होगा। तो हमारे सब लोग एक्चुअली वी आर नॉट ए एडेड ग्रुप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सैलरी स्ट्रक्चर। हमने गवर्नमेंट का उपराग नहीं लिया है, तो हमने ऐसे ही काम करते करते बच के रहे हैं। वी आर वॉलंटियर्स, तो हम सबको बोल दिया कि आप घर में चले जाओ, सब चले गए। तो ये बोलने का कारण ये है कि इसी नीरवता में हमने 2 साल तक सहते रहते हैं अभी तक, और हमारे पास कोई घूमने के लिए भी आते हैं। जैसे आज हमारे नाटक में भी दिखाते हैं कभी कभी कि जब लोग अभिज्ञ हो जाते हैं तो उनके सुनने में कोई नहीं आता तो किसी को भी पकड़ लेते हैं, सुनाते हैं। ऐसे ही अवस्था हमारे है कि हम कोई भी किसी को बंधु हमारे पास आते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे पास कुछ समय बिताओ, खाना खाओ, उसके बाद जाओ, क्योंकि हमको इतना अकेला लगता है। तो इसी समय में ये नाटक करना एक बहाना है। आप जो नाटक देखेंगे वो हमारा नाटक हम नहीं बोल सकते, जिसके लिए 3 महीने का हमारा कैंप चलता है, और हम अनपढ़ नॉन आर्टिस्ट को लेके काम करते हैं जो आदिवासी और रूरल आर्टिस्ट, रूरल एरिया से आते हैं। इसीलिए कोई मिडिल क्लास का भी नहीं है, वो सब चले गए कोरोना के लिए अपने घर। बाद में हम जब ढूंढने लगे कि वो कहाँ गए, कोई अभी केरला में, कोई सूरत में, कोई कहाँ पे दादर श्रमिक होके चले गए। तो इसीलिए हमारे पास कोई नहीं है। तो लोकल एक कॉलेज के साथ हमारा एक वर्कशॉप करके कुछ करने का प्रयास किया है, जो आप आज देखेंगे। तो हम कभी मौका मिले फिर से आपके पास पूरा प्रस्तुति के साथ हम आएंगे, ये भी रहेगा। और ये नाटक भी हर समय एक स्टेप अच्छा जा रहा है, आगे जा रहा है। 2021 में यही कोरोना का अवस्था को लेके हमने ये नाटक किया था। ये मणिपुर का नेशनल फेस्टिवल में हुआ था, लेकिन ये 3rd वर्जन है जो आप देखेंगे, और 3rd बैच भी है। जो लोग आए फिर चले गए, फिर सबको लेके फिर से क्या करना और उसी नाटक को याद करके करवाना, यही रहा हमारा प्रोसेस। और मेरा बहुत डर लगता है, हमारे बुद्ध का बात बहुत याद होता है जब उनको ऐसे बुला के ये सब देते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ बोलिए। बुद्ध ने जब उनके अंतिम चरण में जीवन का बोले उनके ग्रुप को, शिष्य को, कि मैंने जो आज तक सोचा था वो भूल है, मैं और कुछ सत्य डिस्कवर करना चाहता हूँ, अभी तुम उसको भूल बोलो, हमने आज तक जो बोला है उसको ठीक नहीं बोलो। तो सबने मिलके बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी सारे पृथ्वी में सब लोग जानते हैं कि संगम शरणं गच्छामि, और क्या क्या चीज आपने बताया, सबने, हमने इसी को लेके ही हमने स्प्रेड आउट किया है। बहुत लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, अभी कैसे बोलेंगे कि ये सब भूल है, गलत है, आप चुप रहिए। तो बुद्ध को अंतिम स्तर में चुप करके जबरदस्ती सुला दिया गया। बुद्ध ने बोले थे कि नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई पैलेस। तो रानी के पास जाके सब गुहार किया कि भाई उनको आप फिर से भगा दीजिए, आप मत रखिए। तो ऐसे होके वो चले आए। एक नाट्यकार हमारे नाटक में इसी तत्ववेदना के ऊपर लिखा था एक लाइन कि जब किसी का अपना शरीर से जो सच है उसका इमेज बढ़ जाता है, तब वो सोचना है ये सूर्यास्त का समय है, क्योंकि हमारा जो छाया तभी लंबा होता है जब जन्म होता है सूर्य या तो डूबता है सूर्य। तो अपना छाया जब बढ़ जाता है, और अपना तो हो चुके हैं, तो अभी जन्म का समय नहीं है, अभी आगे जा चुके हैं, हम पैदल पे आगे जा सकते हैं। तो जब इमेज बढ़ जाता है तो हमको डर लगता है कि हमारा सूर्यास्त तो नहीं आया। तो इसीलिए मैं आप लोग जैसे ही हम ही हैं, और देवाशीष दा हमसे सीनियर है इन ऑर्गेनाइजिंग ए टीम, और आज तक बचा के रखना। और जब पूरा कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल फोर्स, साइंटिफिक फोर्स हमारा गला दबाने के लिए चक्रांत करते रहते हैं, उसी समय में हम देवाशीष गुप्ता जैसे लोग इसको बचा के रखना, चाहे बुरा नाटक करें, चाहे कहीं पे नाटक करें,
लेकिन नाटक करें, दर्शक है, कुछ करके दिखाते हैं और कुछ लोग देखने के लिए सामने आते हैं, उतना ही कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और 40 साल जब कोई बचा के रखा है, उसका तो वापस जाने का टिकट नहीं है, वो आगे ही जाना है, पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। अभी कभी वो सोच नहीं सकते कि भाई जितना हो गया बंद कर दो, भाई नौकरी में लग जाओ या दूसरा कहीं व्यवसाय में लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनको बहुत बधाई, ग्रुप को बहुत बधाई, और हमें जो हम जितना स्तर पर नहीं गए उससे ज्यादा हमको कुछ दे रहे हैं, इसीलिए उनके लिए हमारा आभारी है हम। और हमारा रिश्ता बढ़ता जाए, और ये पहले बार हम इधर आ रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा एक पॉइंट के साथ हमारा इतने दिन के बाद एक कनेक्शन बनता रहा। एक बार रुद्रदा ने एक बार मुझे फोन करके पूछे थे 3 साल 4 साल पहले, 5 तारीख सितंबर 5 तो गुरु दिवस है, उस दिन गणेश पूजा भी था और गुरु दिवस भी था। तो गणेश पूजा हम करते हैं, हमारे एक बहाना बना के सबको इकट्ठे करते हैं और फीस्ट करते हैं नाट्यगृह में। तो 2 बजे जब मैंने फोन किया रुद्रदा को, तो रुद्रदा बोले अरे क्या कर रहे हो? मैंने बोला नहीं, हम गणेश पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे हो? पूजा में क्या मांगा गणेश को? मैंने बोला मुझे 500 साल बचा दो, आई डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट 500 साल बच के रहना है। बोला क्या पागल हो, इतने में तुम्हारा दम नहीं घुटा? इतना संघर्ष करते करते जा रहे हो, फिर तुमको और जीना चाहते हो? मैंने बोला क्या देखा हमने? उड़ीसा का सब जिला तो नहीं देखा, इंडिया का सब पानी तो नहीं छुआ अभी तक, सब जगह पे तो पैर नहीं गया। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं नाटक में, इतने परिवार है हमारा, सब परिवार का परिचय भी नहीं हुआ। दूर से रह के बोलते हैं कि थिएटर का फैटर्निटी है, दूर से लेके उन्होंने हमारा नाटक कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन बोले कि उनको सुविधा चाहिए इधर आने के लिए, लेकिन आमने सामना नहीं हुआ है। तो हमें क्या, इसके लिए कितना साल चाहिए? इतने सारे जगह है। और मैं विदेश जब जाता हूँ देखता हूँ कि अरे वो भी ऐसे ही है। हमारे बादल सरकार के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन था, जो इन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया था 1991 में। वो 3 बार गए थे नाट्य चेतना, ओनली फॉर ट्रेनिंग अस। तो वहां पे इन्होंने जब उनके साथ बातचीत हुआ, मैं वही बोला उनको कि आप क्यों घृणा करते हैं प्रोसिनियम को, स्पेस को? अरे वो भी हमारा किसी दूसरे देश का थिएटर का माँ है, और ये हमारा माँ है जो हमारे देश का है। और ये नाटक ही है तो ये दोनों बहन हैं, वो हमारा मौसी है। फर्क इतना ही है कि मौसी हमारा तंदुरुस्त है, थोड़ा पैसे वाला है, तो इसीलिए हमारे सब लोग उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि आनंद मिलता है, बिरयानी मिलता है। और हमारा माँ अभी आईसीयू में है, जिसके लिए उसका हाथ पकड़ने के लिए सलाइन चलता है तो कोई नहीं देखता है। इसीलिए हम थोड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो हम वही पैलेस के अंदर घुस के हमारे माँ के लिए कुछ लाएंगे। इसीलिए हम उसी स्पेस को हम गुणा नहीं करना चाहिए। यही हमारा उनके साथ द्विमत था उसके अंत भाग में ट्रेनिंग का। तो इसीलिए हम कहीं पे भी जाके करते हैं। आप जो नाटक देखेंगे आज, उसमें आप ये प्रोसिनियम है, लेकिन प्रोसिनियम का कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इंडियन नाट्य शास्त्र में जो एक मुखी मंच का जो स्टाइल था, उसी को अडॉप्ट करेंगे इसके ऊपर आप देखेंगे। तो आप सब हमारे नाटक देखेंगे, इसीलिए ही इसी बात पे आज के जो पहला नाटक है उनके जगह पे हमारा नाटक हो चुका है, परिचय हुआ, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ। अभी साथ में ऐसे टच करने का समय आया है। ये समय हमको 2 साल हो गया, टच करने के लिए नहीं हो सका था, तो इसीलिए सबके लिए आभारी बनते थे। थोड़ा लंबा बोल दिया।